اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ پر میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی، کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح صاحب۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ دکھیارا دیکھو نا، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی بیمار، اسے کہہ دو 3 تسبیح صبح شام اللہ اکبر کی پڑھ لے، یہ تو مشکل نہیں ہے، بولے مشکل ہے؟ 3 تسبیح صبح شام اگر وہ اللہ اکبر کی پڑھ لے، اور آپ اسے اگر 3 تسبیح کہیں گے نا، وہ سچی بات ہے 3 تسبیح سے زیادہ پڑھ لے گا، اور اگر وہ مجبور ہے نا، اس کو ہٹا دو شرط وضو کی، مریض ہے بیچارہ، پتہ نہیں اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، اس کو قے آ جاتی ہے، قے آنے سے، منہ بھر کے قے آنے سے وضو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کسی حالت میں ہے، اس کو سہولت دو۔ میں نے بابے کو سہولت دی تھی، سرائی بابے کو، کیا کہنے لگا؟ سکھ ہے، سکھ ہے، سکھ ہے۔ میں نے کہا بابا سارا دن بیٹھا رہے اور یہاں کیا کرتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، بس سارا دن بیٹھا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ اور کیا بتایا تھا بابے کو؟ اور 7 تیمم میں نے سکھا دیا تھا، ایک پانی والا وضو، دھرتی والا وضو، دھرتی والا وضو۔ امت کے لیے سہولتیں پیدا کرو، لوگوں کے لیے سکھ لے آؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلائیں، سکھ پھیلائیں، آسانیاں پھیلائیں۔ دکھی تو لوگ ویسے ہی ہیں نا،
दुखी तो लोग वैसे ही। एक खत मेरे पास आया, याद आया, सुन लो, बड़ी अनोखी बात उसने लिखी, खत वाले ने। हाँ जी, गुंगू की ट्रांसलेशन हो रही? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, गुंगू का तर्जमा हो रहा। आपके भी कोई हो ना गोयाई समाज से मारूम गुंगे हों तो उनको लाया करो। ये बाएं हाल के बाएं तरफ जो कोना है ना, इस तरफ सारे गूंगे बैठते हैं। इस तरफ ना बोर्ड लगा, थोड़ा सा कागज लगा देना, गूंगों का ऐसे लगा देना, हल्का, गोया ये समाज से मारूम लोगों का हल्का। मेरे पास खत आया, खत में एक बंदे ने अजीब बात लिखी। कहने लगा कि मेरी बीवी अनपढ़ है, ये मानसेरा हजारा इस साइड से आया। मेरी बीवी अनपढ़ है, मैंने आपके दर्स में सुना अल्लाह अकबर। मेरी बीवी जलजले के इस निजाम पे उसकी टांग टूट गई थी, कमर पे चोट लगी थी, झुक के चलती है, लंगड़ा के चलती है। उस दौर में अफरा तफरी में सही हड्डी नहीं जुड़ चुकी थी जब हर अस्पताल भरी हुई थी और सबके फ्रैक्चर थे और किसी की हड्डी कुछ नहीं बचा हुआ था। जलजले में 2005 का था ना, 5 के जलजले में। अजीब खत पढ़ा मैंने, और मुझे खत यकीन जानी पढ़ के ना, मैं बड़ी देर तक खत को सीने से लगा के ना, मेरे आंसू निकल गया, और मेरे आंसू वाकई निकल गया। तो उस खत में मैंने जो बात पढ़ी बड़ी अजीब, तो जलजले में हड्डी टूट गई और कमर पे चोट लगी, झुक के चलती, गरीब लोग हैं, घर का काम काज हमारा खत्म नहीं होता, पानी दूर से लाना पड़ता है, लकड़ियां जंगल से चुन के लानी पड़ती हैं, और घर भी टपकता है। बीच आता है वो खत बिल्कुल एज इट अक्स के साथ मैगजीन में छाप दूं या नेट पे डाल दूं, और सब कुछ होता है। दस्ती खत मुझे किसी ने आके दिया, लेकिन मैंने आपका दर्श सुना अल्लाह अकबर का, तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं बीवी को बता दूं कि अल्लाह अकबर 3 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लिया कर। कल मेरे बीवी से पूछा अल्लाह अकबर आता है? तो अल्लाह अकबर क्यों नहीं आता है? अल्लाह अकबर तो आता है मुझे। मैंने कहा सारा दिन पढ़ा कर अल्लाह अकबर, सारा दिन पढ़ा कर, सारा दिन अल्लाह अकबर पढ़ा कर, और 3 तस्बीह सुबह और 3 तस्बीह शाम पढ़ लिया कर। जिस हालत में है पढ़ लिया कर, बस पढ़ती रहा कर, जिस हाल में है पढ़ती रहा कर। तो कहने लगा उसने पढ़ना शुरू कर दिया, कोई चंद माह ही पढ़े, चंद माह पढ़े, उसकी कमर सीधी हो गई, थक जाती थी। पहले एक डोल के भर के लाती थी, अब 2 डोल भर के लाती थी। और दवाइयां, पहले कभी दवाई पैसे मिल जाते थे खा लेती थी, दर्द की गोलियां उसने छोड़ दी हैं। उसकी टांग सीधी हो रही है, कमर तो सीधी हो गई, टांग सीधी हो रही है। और मेरे घर में पहले ना बच्चे अक्सर बीमार रहते थे, मैंने 3 तस्बीह सुबह शाम मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मैं इन बच्चों की तरफ से 300 ऊंट सुबह और 300 ऊंट शाम को सदका करता हूँ। कहने लगे बच्चे ठीक हो गए मेरे। यानी हमारे यहाँ जो है एक डॉक्टर साहब आते हैं मोटरसाइकिल पे। ये बात मैंने एक जगह सुनी थी पहले, हमारे साथ था अब्दुल रज़ाक, ये बैठा हुआ है जानिया का। कहने लगे केरे पीर को लैके मैंने गया, इतने झंडे भी है नहीं, ढोल भी है नहीं, सामने बैठा है। अब्दुल रज़ाक खड़ा हो जा, किस सन में गए थे हम, सन याद है? कहते केरे पीर को लेके गए थे, ना झंडे ना ढोले, इन्हें मेरे जिन कड़ने ने। हम गए थे ठट्ठा से आगे घोड़ा बाड़ी तहसील घोड़ा बाड़ी से आगे थारे वाली से आगे केटी बंदर, जो पुरानी बंदरगाह थी, वहां के जंगल में रमजान की रातों में वो कहानी अजब है। जंगल बयाबान, रात को इफ्तारी के वक्त एक जगह इफ्तारी हुई, हम भी खा रहे थे, साथ बिल्लियां आई, वो भी साथ खा रही थी। अंधेरे में बिल्लियां भी खा रही, हम भी खा रहे।
अनोखी कहानी है, क्या बताएं आपको। तो क्या बात कर रहा था, घर के अंदर भाई, घर के अंदर बीमारी थी। हाँ, मोटरसाइकिल वाला, वहाँ मुझे पता चला, मैं जब वहाँ गया ना, तहसील घोड़ा बारी है, ये अंदरून सिंध की एक तहसील है, उसका नाम है क्या, घोड़ा बारी। मैंने पहली दफा देखा, आपने पहली दफा सुना होगा, ठट्ठा से आगे उसमें उन्होंने कहा यहाँ एक डॉक्टर साहब है, उसके मोटरसाइकिल का साइलेंसर नहीं है, जब वो आता है फट फट की आवाज आती है, सारे कहते हैं डॉक्टर साहब आ गया। मोटरसाइकिल का ना वो साइलेंसर के अंदर बंसरी होती है, क्या बला होती है, वो नहीं है। वहां भी उसने वो बात की, उसने कहा वो डॉक्टर साहब है, उनके मोटरसाइकिल की वो साइलेंसर नहीं है, उसकी आवाज जो आती है ना, फिर डॉक्टर को वो साहब हमें दवाएं देते हैं, टीका लगाते हैं, किसी को ड्रिप लगा के चले जाते हैं, कहते हैं वापस आके मैं ड्रिप जो है फिर उतार दूंगा। कहने लगे आप डॉक्टर साहब आते हैं, फट फट होती है, पहले तो एक दो दफा गुजर गए, कहने लगे फिर उन्होंने दस्तक दी, हाँ भाई बच्चे ठीक हैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन कैसे, उन्होंने कहा 300 ऊंट सुबह 300 ऊंट शाम को हम सदका करते हैं। ओ तुम्हारा सदका, और तुम्हारे घर तो रोटी भी नहीं है, और तुम 300 ऊंट, 4.5 करोड़ का सदका सुबह और 4.5 करोड़ का सदका शाम को, दीवानगी, कैसा पागलपन। उन्होंने कहा हम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 300 बार सुबह, अव्वल आखिर 3 दफा 5 दफा 7 बार दुरूद इब्राहिमी, और शाम को भी अल्लाह अकबर हम पढ़ते हैं कि मुझे साल हो गई मंजिलें, कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया, तो चराग रख के भी जल गया। हाय कैसा करीम है, नाम लेके देख सही, उसको पुकार के देख तो सही, अपने वादे पूरे करके दिखाता है। सच्चों का सच्चा जो हुआ, खरों का खरा हुआ, सारा जहान वादे पूरे ना करे और बंदा भी वादा पूरा ना करे, पर बंदे और रब में फर्क क्या हुआ। हाँ, अगर वादे पूरे नहीं हो रहे, देख तुझे करवाने नहीं आते, वो करने वाला है। कहने लगे मेरे घर के अंदर बीमारी खत्म, वो साइलेंसर फ्री डॉक्टर साइलेंसर फ्री डॉक्टर साहब जो थे वो खत्म। उसने कहा आखिर आवाज दी, उन्होंने कहा बाबा क्या है, कोई दवाई दारू, बच्चों का, मेरे बच्चे हैं। उन्होंने कहा तेरे बच्चे हैं पर मेरे भी हैं बच्चे, लेकिन मेरे बच्चों को मुझे दारू मिल गया, जल्जला का मारा हुआ, कमर भी सीधी हो गई, टांग सीधी हो रही, और बच्चे ठीक हो गए, आपस में लड़ना भिड़ना खत्म, बीमारियां खत्म, घर में सुकून राहत, और घर के अंदर चैन आ गया। किसके पढ़ने से, अल्लाह अकबर के पढ़ने से मुझे चैन आ गया और मुझे राहत मिल गई। ये है जिंदगी, है मजेदार जिंदगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कोई मुश्किल है, आसान चीज। ये जिंदगी है जिसमें राहत है, जिसमें रहमत है, जिसमें खुशियां हैं, जिसमें कामयाबियां हैं, जिसमें इज्जतें हैं, जिसमें बरकतें हैं। ये जिंदगी है। फफिर्रू इलल्लाह, लाओ इस जिंदगी की तरफ लोगों को, भागो दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। थक गई है साइंस, थक गया है जमाना, ना दो इल्जाम किसी को, ना दो गालियां हुकूमतों को, ना दो वक्त जाया न करो, ना अंग्रेज को गालियां दो, न करो। वो वक्त जो गालियों पे लगाना, इल्जामों पे लगाना और शिकवों पे लगाना है, वो वक्त अल्लाह अकबर पे लगा दो, वो वक्त सूरत तगाबुन पे लगा दो, वो वक्त सूरत रहमान की ड्रिप लगाने पे लगा दो। देखो सच कह रहा हूं, ये ऐसा जिंदगी का निजाम है जो तुझे राहतों और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखा दे, ना खोले खोल के दिखा दे। मेरा घर कहते हैं, मेरा घर खत में अजीब बात लिखी है। कहने लगा मैं जब ये खत लिख रहा हूं मेरे आंसू निकल रहे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
میرا پیغام آپ اپری کے قارئین کو پہنچا دیں اور درس میں بشک پہنچا دیں کہ اللہ اکبر سے میرا گھرانہ صحت یاب ہو گیا ہے۔ اور بتاؤں طاقتور سے طاقتور جن ہو، میرا تجربہ ہے 1 2 3 بارہا اللہ اکبر دل کی عظمت کے ساتھ کہیں جن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے اور کوئی چٹان نہیں ٹوٹتی تھی اور کوئی مارکا نہیں فتح ہوتا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، اور اللہ اکبر کا نعرہ اور ایک جلسوں میں نعرے، ایک خندق کا نعرہ، وہ اور اس میں بڑا فرق ہے۔ ہاں، یہ بات میں نے جنرل جاوید ناصر سے سنی تھی، ہاں اس سے سنی تھی۔ ایک دفعہ وہ بات کر رہا تھا، ایک بندہ نے اللہ اکبر اس کا کہنے لگا چپ کر جا، ٹھہر جا، خندق کا اللہ اکبر اور تیرے اللہ اکبر میں فرق ہے۔ وہاں اللہ اکبر پتھر کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تیرا اللہ اکبر تو باطل کے جالے کو بھی نہ توڑ سکے۔ ہاں، مکڑی کے جالے کو نہ توڑ سکے جو باطل ہے۔ اللہ اکبر کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جن ٹکڑے ٹکڑے، باطل ٹکڑے ٹکڑے، کفر ٹکڑے ٹکڑے، اور اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اکبر میں ہے کیا؟ اللہ اکبر کمال ہے۔ اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز خود اللہ ہے۔ اس میں ذات، اس میں اللہ، اس میں ذات۔ اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ ہے، تو پہچان ہی نہ سکتا۔ اور یہ پریشانیاں اگر میرے پر نہ آتی، ہاں فرمایا یہ مصیبتیں زنجیریں ہیں۔ پوچھا کس چیز کی؟ کہا اللہ کی طرف کھینچنے کی۔ یہ مصیبتیں زنجیروں کی طرح رگڑ کے جکڑ کے تجھے اللہ کی طرف کھینچ کے لے آتی ہیں اور اللہ کے حضور پیش کر دیتی ہیں۔ یہ زنجیریں ہیں کہ تجھے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوری اور عاجزی کے ساتھ اگر چلتے رہیں گے، اور اگر کہیں ہماری چال میں، ہمارے حال میں، ہماری ڈھال میں، ہمارے سوچوں میں، ہمارے جذبوں میں اگر بڑائی اور کبریائی کی کیفیت پیدا بھی ہو جائے، تو استغفار رکھا ہی اسی لیے ہے۔ استغفار اس لیے رکھا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، معصوم نبی معصوم ہوتا ہے، اور گمان گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، تصور گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، خیال گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں کہ میں 70 دفعہ صبح اور 70 بار شام استغفار کرتا ہوں۔ اگر میرے تصور میں، میرے خیال میں، کوئی میرے مزاج میں بڑائی آ گئی ہے، سوچوں میں، چال میں کوئی آ گئی ہے کوئی چیز، تو میں فوراً ندامت کے جذبے میں استغفار کر لوں، نستغفرک ونتوب الیک، مولا میں توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، اور مولا میں واپس آ گیا ہوں، میں کہیں اور غرے میں چلا گیا تھا، میں کہیں اور گمراہی میں چلا گیا تھا، کہیں اور چلا گیا تھا۔ متاع الغرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، اور عربی لغت میں متاع کہتے ہیں عورت کے اس ناپاک کپڑے کو جس کو وہ چھپاتی ہے۔ متاع الغرور کہ دنیا تو وہ ناپاک وہی کپڑا ہے، اور پھر یہ دھوکے کا گھر ہے، اور 4 دنوں کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے ایک محسن اس دنیا سے رخصت گیا، میں سارا دن روتا رہا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ ابھی میں عیادت کرنے گیا کچھ ماہ پہلے، تو فرمانے لگے 87 سال ہو گئے، اور قمری کے مطابق 90 سال کی عمر، 90 سال کی ساری عمر اللہ کے لیے گزار لی، ساری عمر زندگی مجاہدوں میں، قربانیوں میں گزار کے آج اللہ کے حضور وہ درویش چلا گیا۔ 3 بجے جنازہ تھا،
कब्रों में जाके या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, मैंने हाथ पकड़ा तो मैंने वादा लिया, मैंने कहा हाजी साहब, हाजी रफीक साहब, आप लुकते के अमीर हैं, लेकिन एक बात वादा मुझसे करें कि आप जन्नत में इंशाल्लाह जाएंगे, पर मुझे साथ लेके जाएंगे। कहने लगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने अपनी रहमत से भेजा, मैं हकीम तारिक। और फिर कहने लगे ओ लोगों जितने बैठे हो सुन लो मेरी गल, लोगों जितने बैठे हो मेरी बात सुन लो, मैं हकीम तारिक के बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। हमारे पास तो यही भरोसा है, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूं, ए दुख सानू हर दम राशि, रोंदी ही मर जावा हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज मुझे मैसेज आया और फिर फोन आया कि हाजी साहब रात फौत हो गए और आज 3 बजे जनाजा, और बस मैं खून के आंसू रोता रहा कि मैं जनाजे में शामिल ना हो सका। एक जन्नती का जनाजा जिसके पढ़ने से ही मगफरत के परवाने मिल जाते हैं। तो कुछ मुसीबतें तकलीफें होती हैं ऐसी जो रब के करीब ले आती हैं। कभी किसी का घर नहीं होता, कभी किसी का दर नहीं होता, कभी किसी के पास माल नहीं होता। दूसरे लफ्जों में दांत हैं तो चने नहीं है, चने हैं तो दांत नहीं है। कोई ना कोई चीज छीन लेता है और दूर करके कहता है मेरे बंदे मुझे भूल के जिंदगी गुजार रहा, मुझे भूल के। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मैं गालिबन सुबह उठा नमाज फजर के लिए बर्थ से, तो ये देखा कि एक बर्थ खाली पड़ी हुई है। मैं ऊपर वाली बर्थ पे था, दरमियान वाली बर्थ खाली पड़ी हुई, और कूलिंग बहुत ज्यादा थी, लोअर एसी था। मेरे पास कंबल थी लेकिन मेरे पांव पे सर्दी लग रही थी। तो एक बच्चा देखा, मैंने कहा नंगा पड़ा हुआ है, मैंने कहा बच्चा सोया हुआ है, इसके ऊपर कोई कंबल वगैरह नहीं है। लेकिन बच्चे को हाथ लगाया, वो तो कोई गुड़िया थी और 2.5-3 साल के बच्चे जितना मोटा मोटा गोंगलू बच्चा था, ऐसे सोना सोना पीना। मैंने उनसे देखा ना, तो खैर नमाज पढ़ के आया तो मैं ऐसे बैठ गया कुछ तस्वीर। तो मैंने एक साहब थे, उनसे पूछा, मैंने कहा ये गुड़िया? कहने लगा हाँ बस औलाद नहीं है, मेरी बीवी जो है इस बच्चे को साथ लिए लिए फिरती है और स्पेशल इस बच्चे के लिए एक बर्थ करवाई है कि मेरा बेटा बर्थ पे सोएगा। और फिर मैंने उन्हें कुछ बताया, मैंने कहा जिस शख्स की औलाद ना हो, अगर असर की नमाज के बाद या रहमान 11 दफा पढ़ ले, अल्लाह उसको औलाद देता है। वो माई ऐसे सुनी और मेरी तरफ मुतवज्जो हुई, वाकई आप सच कह रहे हैं, और उसके आंसू थे जो थमते नहीं थे। फिर उसने बताया मैं पाकिस्तान के फलां ओहदे में हूं, मेरे पास एक घर है, ये नेमते हैं, ये फलां फलां है, लेकिन औलाद नहीं है। और मुझे तो कुछ ज्यादा एहसास नहीं होता बाज़ औक़ात, लेकिन मेरी बीवी है जो इस एहसास में घुलती चली जा रही है, घुलती चली जा रही है। फिर बाज़ औक़ात इसी गुड़िया को, इसी बच्चे को अपने सीने से लगा के कुछ तसल्ली के आंसू लेती है और फिर सो जाती है, और कभी कभी उठा के इसको करवट में लेके सोती है। ये गुड़िया ही तो है, आखिर जिंदा बच्चा औलाद तो नहीं है। और फिर उसने जो अगली बात कही, जो आज के मौजू पे ये वाक़या मैं सुना रहा था, कहने लगे कि ये बहुत मॉडर्न थी यूनिवर्सिटी में, और हर डांस का फंक्शन और हर मामले में ये आगे होती थी और एक्स्ट्रा मॉडर्न थी। शादी हो गई और शादी में भी वही मॉडर्न शादी हुई। 1 साल गुजर गया, फिर 2 साल, फिर 3 साल। कहा जब 3 साल गुजरे ना, एक शादी औलाद नहीं हुई। पता चला कि मर्द में नक्स नहीं, औरत में कोई नक्स और कमी है। फिर इसने इलाज करने शुरू किए, फिर इसने बाबे फिरना शुरू किए, फिर इसने दरबारें फिरना शुरू की, फिर इसने चक्कर लगाते लगाते आज आलम यह है, इसकी तहज्जुद नहीं चूकती, इसकी नमाज, कहने लगे मुझसे नमाज में कोताही हो जाती है, पर तस्बीह, नमाज, जिक्र, तहज्जुद, और ये ऐसी अल्लाह वाली बन गई है, और ऐसी बन गई है कि बाज़ औक़ात मैं इसको मलंगड़ी कहता हूं कि तुझे क्या हो गया है। कहने लगे बस मुझे समझ आ गई है कि रब है और सारी कुदरत की चाबियां उसी के पास, कुव्वत की चाबियां उसी के पास, मिल्क उसी का, माल उसी का, इक़्तिदार उसी का, जिससे दे, जिसको दे, जिससे ले, जिसे अता करे, जिसे छीन ले। लगे इसे एहसास हुआ है, और ये औलाद की महरूमी ने इसे विलायत के आला मकाम और दर्जे तक पहुंचा दिया है। हमसे अगर कोई चीज न छिनती,
ना छिनती, पता नहीं हम होते क्या, होते क्या, होते क्या। मेरा एक दफा ना गुजरात के आगे, खारियां आगे है मोरी शरीफ, वहां दर्स था, दर्स था। दर्स के बाद मैं वापस आने के लिए घर में गया, वहां दुआ करनी थी। मैं वापस हुआ तो वहां एक साहब खड़े थे और उन्होंने मुझे एक बात कही। मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, कोशिश होती है कि अल्लाह पाक ने किसी के अगर पर्दे रखे हैं तो मैं कौन होता हूं उसकी पर्दादारी करने वाला। तो वो साहब खड़े थे, एक बहुत बड़े ओहदे के मालिक थे। अच्छा, मुझसे ऐसे बातें की और मेरे जो मैंने कुछ जिक्र तस्बीहात वज़ाहिफ बताए, मदीने वाले के आमाल नबवी मसनून आमाल बताए, तंजन उनके बारे में पूछ रहे थे, क्या वाकई ऐसे होता है, क्या वाकई आप ठीक कह रहे हैं। और फिर आखिरी बोल मुझे उनका याद है, याद है। कहने लगे कि दुनिया पता नहीं कहां से पहुंच गई और आप खुद साइंस पढ़े हुए हैं और आपने इतनी किताबें, इतना काम, और सुना है कि आपने पीएचडी की डिग्री भी ली हुई है, तो दुनिया तो कहां पहुंच गई है, आप तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, ऐसी बातें ना करते। तो मैंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मियां साहब दुआ करें अल्लाह मुझे हिदायत दे, और शायद अगर आपके हिस्से में लिखे तो अल्लाह आपको भी दे दे। मैं चला आया। मेरे साथ जो मेजबान थे वो उनके कजन थे, रिश्तेदार थे। उनको इन बात में बड़ा गुस्सा आया, खामोश रहे। गाड़ी में बैठते ही कहने लगे, तो मैंने खामोश कराया। मैंने उनसे 2-3 सवाल किए। मैंने कहा कि इनके पास सारी नेमतें हैं। कहने लगे जी किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने कहा बस यही है कि ये जो फिरौनी बोल बोल रहे हैं ना, मालूम होता है किसी चीज की कमी नहीं है। और मैंने एक बात कही, मैंने कहा मैं कोई पेशीन गोइयां दे नहीं सकता है कि मैंने विलायत के अभी तक दावे नहीं किए, ना मैं वली हूं, ना मैं पहुंची कोई सरकार हूं, लेकिन मेरा मन कहता है, मेरा विजदान कहता है कि शायद कहीं अल्लाह इसको किसी आजमाइश में और किसी मुसीबत में मुब्तला ना कर दे। इसने आज बोल बड़े बोले हैं कि असल में मेरा मजाक नहीं, मैंने तो किसी में डाकिया हूं, मैं किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है। मैं तो मदीने वाले के दर का मिरासी हूं, उन्हीं की डाक को तकसीम कर रहा हूं, उन्हीं की बातें कहता हूं। और मैं अक्सर एक बात कह रहा हूं और कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे आपने एक नंबर होने का दावा नहीं, पर मेरे वज़ाइफ मसनून अमाल कुरान और हदीस के वो एक नंबर है। मैं एक नंबर हूं, मुझे इसका कोई दावा नहीं, न दावा कर सकता हूं। एक नंबर होने का पता मौत के वक्त पते चलेगा, कौन मुखलिस था, कौन मुनाफिक था, कौन रियाकार था, कौन एक नंबर था, कौन 2 नंबर था, वो मौत के वक्त पता चलेगा। लेकिन मेरा जो पैगाम है वो एक नंबर है, मेरा जो मैसेज है वो एक नंबर है। मुझे अभी कुछ अरसा पहले पता चला कि उनकी रान तक टांग कट गई है, एकदम शुगर हुई, फिर गैंग्रीन हो गई और हो गई। और उनका पैगाम मिला कि मैं क्या पढ़ूं, और मेरे जी में आया कि इनको बताऊं कि अब तू क्या पढ़े। मैंने कहा ना, वो आजमाइश पे है, फिर मैं आजमाइश में ना आ जाऊं। मैंने उनसे कहा पढ़ हामीम ला युनसरून, ये वो बोल हैं जो ग़ज़वा खंदक में मुहद्दिसीन ने सही रिवायात में लिखा है। हयात सहाबा में मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कई रिवायात में कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में हामीम ला युनसरून बताया था सहाबा को, अहले बैत को, अपने साथियों को कि ये पढ़ो। और अल्लाह ने बगैर ग़ज़वे के जंग के और फतह अता फरमाई थी और दुश्मनों पे रोब डाला था और पेट पे पत्थर बंधे हुए थे, और पत्थर बंधे के बावजूद भी अल्लाह पाक ने गैब से उनकी मदद फरमाई। मैंने कहा ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत देगा। और उन्होंने पढ़ना शुरू की। और मुझे एक दफा कोई चंद दिन पहले उनका फोन आया तो बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा मेरी जिंदगी में मुझसे जुदा हो जाएगा। फिर मैंने उनसे अर्ज किया,
मैंने कहा मियाँ साहब एक तस्वीर सुबह शाम इस्तिग़फ़ार भी कर लिया करें, क्या पता बंदे के मुंह से कोई ऐसे बोल निकल जाते हैं। मुझे कहने लगे मुझे याद तो नहीं मैंने आज तक और बोल निकाले हों, क्योंकि वो असल में बोल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे, उन्हें पता ही नहीं। जैसे बाज बंदे ना बेसाख्ता गालियां दे रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं हम गालियां दे रहे नहीं दे रहे, उन्हें पता ही नहीं होता। मेरे रब को यह आजिज़ी बहुत पसंद है, अगर हो भी जाए मैं भी तो इंसान हूं। फिर अल्लाह ने इसके लिए इस्तिग़फ़ार रखा है। एक तस्बीह सुबह शाम इस्तिग़फ़ार की जो हम बताते हैं, 3 तस्बीहात, तीसरा कलमा दरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार, ये एक तस्बीह सुबह शाम इस्तिग़फ़ार की इसलिए है कि मौला मेरा कोई बोल, मेरे कोई लम्हे, मेरे कोई लहजे, मेरे कोई औकात, मेरे कोई अल्फाज, मेरा कोई सोचें, मेरे कोई जज्बे, मेरी कोई जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा जहां मैं तुझे भूल के और जहां मौला मैं तेरी हस्ती को भूल के अपनी हस्ती में गुम हो गया था, अल्लाह उन लम्हों पे इस्तिग़फ़ार, अल्लाह उस लहजे पे इस्तिग़फ़ार, अल्लाह उन बोलों पे इस्तिग़फ़ार, उन कदमों पे इस्तिग़फ़ार, अल्लाह उस साथ पे, उस घड़ी पे इस्तिग़फ़ार और तौबा कि मौला जिस लम्हे में कहीं तूने फैसला कर दिया कि जा तो आज के बाद हमारी पकड़ में है, जा तो आज के बाद हमारी लानत में है, जा तो आज के बाद ऐसी आजमाइश में है कि कभी हम तुझसे छीन लेंगे कोई चीजें और तुझे सिसकाएंगे और वो नेमत तुझसे छीन लेंगे, लोगों के पास होगी और तू सिसकेगा तो दर बदर छानेगा, हम तुझे वो नेमत नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि तूने वो बोल बोले थे, फिर उन बोलों को अपने कुफ्र का एतराफ नहीं किया था। ये इस्तिग़फ़ार अपने कुफ्र का एतराफ है, ये अपनी गलतियों का एतराफ है, अपने जज्बों का एतराफ है, उन जज्बों का जिन जज्बों के अंदर खोट था, जिन लम्हों में खोट था। इस्तिग़फ़ार करने वाला बच जाता है। मैं एक एयरपोर्ट पे जा रहा था, एक बंदे के पास ना एक ब्रीफकेस था बड़ा जिसमें व्हील लगे हुए, रश था, फ्लाइट एकदम निकली, रश था। तो एक बंदा जो है जा रहा था, पता नहीं क्या लफ्ज कह रहा था, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। अच्छा लोग देखते ऐसे रास्ता बनता जा रहा था, बनता जा रहा था, बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। मैंने कहा ये असल में एक्सक्यूज मी नहीं कह रहा, असल में कहता है इस्तिग़फ़ार कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है। एक्सक्यूज मी इंग्लिश का इस्तिग़फ़ार है ना, आप एक्सक्यूज मी का जरा तर्जमा देखें, ये इंग्लिश का इस्तिग़फ़ार है। मैंने कहा देखें ये इस्तिग़फ़ार कर रहा, इसके लिए राहें खुल रही, इसके लिए रास्ते खुल रहे, जो इसने देर से पहुंचना था ये जल्दी पहुंच रहा। मेरा अल्लाह भी कहता है कि जब इस्तिग़फ़ार करोगे, कौन सी आयत है, कुल तस्तग़फ़िर रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करो मैं मग़फ़िरत करने वाला हूं, और मिदरारा ऐसी बारिशें दूंगा जो मूसलाधार और वक्त पे होंगी, अनहारा नहरों की नहरें बहा दूंगा, और समर दूंगा और बेटे दूंगा, बनीन, बनीन, बनात कहते हैं बेटे को और बनीन किसको कहते हैं, बेटों को कहते हैं। बेटे दूंगा, नेमतें दूंगा, किस पे, इस्तिग़फ़ार पे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरे पास बेटे नहीं, फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। दूसरा साइल आया, उसने कहा माल नहीं गरीब हूं, फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। एक और आया, उसने कहा जी चाहता है कोई फल हो समर हो, फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। एक और आया, उसने कहा जी कोई बाग हो मेरी नेमतें हो, फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। जो भी साइल आया उसे इस्तिग़फ़ार फरमा रहे थे। साथ एक साहिबे नजर, साहिबे अकल ही कह दूं, वो बैठे थे। उन्होंने पूछा हुजूर आप जो भी आता है सबको इस्तिग़फ़ार फरमा रहे, क्या वजह है? फिर उन्होंने ये कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया अल्लाह कहता है कि जब इस्तिग़फ़ार करोगे फिर बिन मांगे नेमतें दूंगा, फल दूंगा, बाग दूंगा, माल दूंगा, बेटे दूंगा, ये सारी नेमतें दूंगा किस पे, इस्तिग़फ़ार पे, इस्तिग़फ़ार पे। और एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, 3 दिन पहले एक साहब आए, या आज जो मैं मजमून बयान कर रहा, उन साहब की एक बात मुझे आई। आपको याद है मैंने कई दर्स में एक बात कही है कि बाज़ औक़ात बड़ों की गलतियां ऐसी होती हैं, बड़ों के गुनाह ऐसे होते हैं और उन गुनाहों की नहुसत ऐसी होती है
जो नस्लों तक ताक़ुब करती है, जिसे मैं अक्सर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज किया करता हूं कि दुआएं भी ताक़ुब करती हैं और बद्दुआएं भी ताक़ुब करती हैं, और लानत जो भेजी हुई वो भी पीछा करती है। यह मैं हदीस के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, मफहूम है। जो बात मैं अभी आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, मुझसे कहने लगे, अजीब बात कही, मुझसे कहने लगे आपसे यह मजमून सुना कि आपने नस्लों के लिए इस्तिग़फ़ार किया करें, पिछली नस्लें, कोई मेरी नस्लों में जालिम आया, मेरे दादा का दादा था, उसके दादे का दादा था, मुझे याद नहीं, नस्ल तो चली आ रही है ना। अच्छा, कोई मेरी नस्लों में ऐसी औरत आई जिसने कोई किसी के साथ ज्यादती की, किसी की नकलें उतारी, किसी का दिल दुखाया और उसके अंदर से आह निकली, और कोई ऐसा रिश्तेदार मैंने उसका ख्याल ना किया और उसके अंदर से आह निकली। ये चीजें वो बता रहे थे। कहने लगे मैंने आपसे ये बातें सुनी थी कि अपने बड़ों के लिए भी इस्तिग़फ़ार किया करें। और मुझे कहने लगे एक मजमून मुझे अच्छा लगा जब मैंने कहा कि जैसे जैसे जो है वो मुतासरीन सैलाब होते हैं, मुतासरीन जलजला होते हैं और मुतासरीन कहत होते हैं, इस तरह कुछ ऐसे लोग मुतासरीन होते हैं जिनको हमारे बड़ों ने मुतासर किया था, उनका माल छीन लिया था, उनकी इज्जत छीन ली थी, उनके सर की दस्तार को पांव के नीचे मल के उन्हें जलील कर दिया था, उनको गलियों में रोला था, जुल्म किया था, या कोई ऐसी ज्यादती हो गई थी, या पैसे लिए दिए नहीं, माल खा गए, सौदा किया फिर गए, कमी बेशी जिंदगी की कोई भी, ये मुतासरीन हैं, इनके हकूक हैं और जो कि नस्लों से बाज़ औक़ात मुख्तलिफ तरीकों से छीने जाते हैं। ये मैं मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूं जिसको मेरी इन बातों के किताब के हवाले चाहिए, बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबों के हवाले दूंगा। बाज़ औक़ात नस्लों से वो चीजें छीनी जाती हैं, उनके गुनाहों की वजह से, उनके जुल्म की वजह से, उनके जुल्म की वजह से नस्लों पे इताब है। अच्छा, ये बात तो आपने आमतौर पे सुनी ना कि करे कोई भरे कोई, सुनी? अच्छा, ये तो आमतौर पे आपने सुनी कि ये जो कुछ इसके मिजाज में है, इसके दादा में भी ऐसे था, हमें पता है। एक साहब को मैं जानता हूं, वो उसका बेटा 2, उसका वालिद 3, उसका वालिद का वालिद यानी उसका दादा 4 नस्लें मेरे सामने ऐसे आंखों के सामने हैं। उसके दादा को मैंने छोटी उम्र में देखा, उसके वालिद को मैंने जवानी में देखा, और उसको मैंने अभी देखा, उसकी औलाद को मैंने अभी देखा। वो औलाद भी जवान हो गई, उसकी शादी हो गई है, उसका छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। 4 नस्लों को मैंने देखा है, चर्स, जुआ, शराब, गंदगी, खबासत, गिलाजत और धोखा में 4 नस्लों को तो मैंने देखा है। बाज़ औक़ात नस्लों का मिजाज मुंतकिल होता है। एक साहब है, भैंसों और गाय का काम करते हैं। मुझसे कहने लगे मैं जब कोई गाय और भैंस लेता हूं, पहले उसको धोता हूं, फिर उसकी मां को धोता हूं, फिर उसकी नानी को धोता हूं। क्या धोते हुए पेशाब करना तो शुरू नहीं कर देती, गोबर तो नहीं निकालती, टांगे तो नहीं मारती, मुंह तो नहीं मारती, और बाज गायें अपना मुंह लगा के अपने थनों को खुद पीना शुरू कर देती हैं। ये बड़े बैठे हैं, इनसे पूछ लेना क्या उसका मिजाज ये तो नहीं। कहने लगे जब मैं उसकी नानी को देखता हूं, उसकी मां को देखता हूं और उसको देखता हूं, फिर मैं गाय का सौदा करता हूं कि हाँ ये ठीक रहेगी। और मैं प्यार करने वाले शादी वालों से कहता हूं तुम्हें क्या खबर वो मां कैसी थी या दादी कैसी थी, ऐसे ये मुझे अच्छी लग रही है, आई लव यू। और उसके बाद जो अंजाम निकलते हैं, प्यार की शादियां अक्सर क्यों नहीं जिंदा व ताबिंदा रहती, रोते रोते गुजर जाती हैं, या आपस में जिंदगी लड़ते और पता नहीं मसाइल और मुश्किलात में। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि परखा नहीं होता कि इसकी मां कैसी थी, वो कैसी थी, इसकी दादी कैसी थी। पहले रिश्ते के लिए मां, दादी और नानी को देखा जाता था। पूछ लेना बड़ों से, मैंने बड़ों से सुना है ऐसे रिश्ते नहीं होते थे, नहीं होते थे। जो बात मैं कह रहा था मुझे उस साहब ने आके कही, कहने लगे कि मैंने आपसे सुना कि मुतासरीन हैं, उनको पढ़ के हदिया दें और माल सदका करें। याद है मेरी बात? मैंने एक बात आपसे अर्ज की थी, जो मुतासरीन हैं
यानी मेरे बड़ों की वजह से। मैं वजाहत कर दूं, ये वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि बाज लोग ऐसे बैठे हैं, हर दफा हमारा मजमा नया होता है, पुराने भी आते हैं, कि वो इसलिए कि बाजों ने ये मजमून सुना नहीं, नेट पे तो पड़ा हुआ है। वो ये है कि हमारे बड़ों में से कोई ऐसा था जिससे कोई खता हुई, जुल्म हुआ, खयानत हुई, ज्यादती हुई, चाहते हुए या ना चाहते हुए हुआ, और उसकी वजह से कोई मुतासिर हुआ, मजलूम बना, अब उसकी आह दिल में रह गई और वह मर गया, तो अब माफी किससे मांगे? पता ही नहीं है किससे माफी मांगे, वो तो नस्लें ही खत्म हो गई। पर उसकी आह ट्रेवल कर रही है, सफर कर रही है, वो नस्लों में चल रही है, और मुख्तलिफ मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें, दुख और तकलीफों का जरिया बन रही है। उसका हल दो चीजें हैं, सुन लेना। एक, माल का सदका करना उस नीयत से कि क्या पता मौला हो मेरे मेरे किसी बड़े ने किसी का माल खाया हो, या किसी का माल ना खाया हो, उसकी नीयत ना खाने की थी पर देना था, बिन दिए मर गया, अल्लाह मैं उसकी तरफ से माल का सदका करता हूं। और फिर अगली चीज इस्तिगफार है, इस्तिगफार करता हूं मौला, क्या पता मेरे इस्तिगफार से वो मुसीबत टल जाए। अब उस दोस्त की बात सुने जो मैं बात कर रहा हूं। पहले मैंने इस बात को थोड़ा सा इसलिए खोला, जो वाकया अब सुना रहा हूं। कहने लगे कि मैं मुसलसल इस्तिगफार भी कर रहा था और माल का सदका भी मुसलसल कर रहा था, क्योंकि मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं ऐसे बेजुबान गरीबों को तलाश करें, रिश्तेदारों को तलाश करें। कुरान कहता है वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और आगे मुसाफिर। इन चार दर्जे हैं, पहले परदेशी नहीं, पहले गरीब नहीं, पहले यतीम नहीं, पहले अपना रिश्तेदार जो गरीब है और जिसकी गैरत कबूल नहीं करती वो कि आपका माल कबूल करे। वो लोगों से मांग लेगा पर शरीक रिश्तेदार से नहीं मांगेगा, उसको दो। मुझे कहने लगा मैंने सब कुछ यही किया, रिश्तेदार जो है उसको मैंने माल दिया, किसी तरीके से उन्हें राजी किया, माल दिया और इस्तिगफार किया। ये मैं मुसलसल कुछ अरसे से कर रहा हूं। अब कहने लगे गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुझे ख्वाब आना शुरू हुए, ख्वाब में कुछ लोग हैं, ख्वाब में कुछ लोग हैं और वो आते हैं और आके मेरे सामने बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं और आके कहते हैं तू जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। लेकिन मैंने समझा मेरा ख्वाब व ख्याल था, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं और ये किस चीज के बारे में मुझे कह रहे हैं, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। पहले कुछ अर्से के बाद फिर ख्वाब आया और फिर वही के वही चेहरे, कहने लगे तू जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। लगे फिर ये मुसलसल ख्वाब मुझे आना शुरू हो गया। तो अब ख्वाब में अल्लाह की तरफ से मुझ पे हकीकत खुल रही, तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या कर रहा हूं। कहने लगे जी तू हमारी तरफ से जो लोगों के हक अदा कर रहा और इस्तिगफार कर रहा। एक ने कहा कि मुझे कब्र में नमी का अजाब था। अब एहसास होता है कि अगर गीले कपड़े हों, सख्त गर्मी हो या सर्दी हो, जब तक कपड़े खुश्क ना हो जाए तबीयत में कैसी घबराहट होती है। अच्छा, पसीने से शराबूर कपड़े हो जाएं और वो पसीने से कपड़े भीग गए हों तो तबीयत में उकताहट, घबराहट होती है या फराहत होती है। मैं हैरान हुआ उसकी बात सुन के कि जिस तरह मुहद्दिसीन ने अजाब की किस्में बयान की हैं, तो फरमाया कि मुझे नमी का अजाब था, वो मुझसे टल गया, और तेरे माल सदका करने और तेरे इस्तिगफार करने की वजह से नमी का अजाब था। और एक कहने लगा कि मुझे गर्मी का अजाब था, और एक कहने लगा मुझ पे चूंटियों का अजाब था कि सारा दिन मुझे चूंटियां ही काटती थी, और तेरे इस माल और इस्तिगफार की वजह से ये अजाब टल गया। बोले कुछ अरसे के बाद एक साहब कहने लगे बेटा मैं तेरा परदादे का वालिद हूं, मैंने ये देख ये बंदा है, इसका माल खाया था, रोज आता था, अल्लाह ने इसको मुझ पे मुसल्लत किया था,
इस लकड़ी से मुझे मारता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। कुछ अरसा हुआ ये आया नहीं, फिर हमें अल्लाह ने रूहों को तौफीक दी है। मैंने इनसे पूछा तो कहा कि तेरे वारिस ने हमारा हक अदा कर दिया है, अब हमें रहा। दूसरे लफ्जों में, ये अगला लफ्ज मेरा है कि मेरा घर पूरा हो गया है, अब तेरा मेरा कोई हकूक का मुतालबा नहीं है। अब मुझे समझ आती है कि हदीस में आता है जो बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है, क़यामत के दिन अगर फर्ज नमाजों में कमी हो जाएगी, अल्लाह उन नवाफिल को पेश करके फर्ज नमाजों की कमी को पूरा करके हिसाब बराबर कर देगा। और जो सदकात का एहतमाम करता है, सदकात का, माली सदकात का एहतमाम करता है, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे लोगों को वो सदका उठा के दे देगा और इसकी नेकियां नहीं छीनेगा और नेकियों का तराजू भारी हो जाएगा और यह जन्नत में चला जाएगा। इस्तिग़फ़ार और माल का सदका, और माल के सदके के लिए ऐसे लोगों को तलाश करना, ऐसे लोगों को तलाश करना कि जो बेजुबान है, सवाल नहीं कर सकते। चौराहों पे, चौकों पे लोग सवाल कर लेते हैं, अपना घर पूरा कर लेते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के पास तो बड़ा मजबूत बैंक बैलेंस होता है। ऐसे लोग जो सवाल नहीं कर सकते, जो सवाल नहीं कर सकते। आज इस मुहर्रम के पहले अशरे में इंशाअल्लाह, मुहर्रम के बारे में हमारे 2 दिन हैं, 9 और 10 यहाँ क़याम होगा पूरे मुल्क से, और लोग आ रहे हैं, यहाँ क़याम है, ख़वातीन का भी, मर्दों का भी, और सुबह शाम सहरी और इफ्तारी है। और जो रोज़ा नहीं रख सकते, जिनकी तबीयत इजाज़त नहीं देती, उनका खाने का एहतमाम भरपूर है, अपने बिस्तर के साथ तशरीफ़ लाएंगे। वो तो इंशाअल्लाह हम अहले बैत अतहार, आले रसूल के सारे वज़ाइफ, अमलियात, उनकी ज़िंदगी, फ़लसफ़ा करबला, ये सारी चीज़ें हम बयान करेंगे। आज के इस 2 मुहर्रम है, आज 2 मुहर्रम में मैं एक तोहफा आपको देना चाहता हूं। 2 मुहर्रम में एक चीज देना चाहूंगा, और मेरा मशवरा है कि अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे, ये चीज जरूर कर ले, ये चीज जरूर कर ले। और अगर न कर सके तो किसी को बता दे, वो कर लेगा तो इंशाल्लाह इसका भी हिस्सा मिल जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, लेकिन मुहर्रम के अय्याम में उसकी कबूलियत, उसकी मकबूलियत, उसकी महबूबियत, क्योंकि मुहर्रम का तकद्दुस आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो रहा है। वो 4 महीने जिसमें मुशरिकीन मक्का अपनी जंगें रोक लेते थे, कत्ल गारत खत्म कर देते थे, उनमें मुहर्रम भी है, उनमें मुहर्रम भी है। इसका तकद्दुस, इसका एहतराम, इसकी इज्जत, इसकी अजमत, इसका वकार मुहद्दिसीन ने जो लिखा है वो तो आदम अलैहिस्सलाम से है। और मजीद एक जिंदगी का ऐसा सानिया हुआ कि कायनात के शहजादे मुहर्रम के अय्याम में जो है वो शहीद हुए। इसने इस वाक़े को और ज्यादा इज्जत और अहमियत बख्शी मुहर्रम के अय्याम में। तो ये चीज मैंने आपको जो अभी अर्ज कर रहा हूं, पहले भी अर्ज की है, आज उसकी याद दहानी, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो मुहर्रम के इस पहले अशरे में ये चीज जरूर कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात ना मखलूक को देने से खालिक फैसले बदल देता है। मखलूक को देने से एक कतरा भी किसी को पिला दें तो अल्लाह फैसले बदल देता है। फिरौन अपनी सारी फिरौनियत के बावजूद अल्लाह के अज़ाब से बचा रहा, सिर्फ इसलिए कि उसका लंगर और दस्तरखान वसी था। हामान उसने वजीर खजाना, वजीर माल बनाया हामान, और उसने आके ना उस दौर का कैलकुलेटर उठाया, उस दौर की आदाद और शुमार किया, और कहने लगे रोजाना इतनी सैकड़ों गायें ज़बह होती हैं, इतने जानवर ज़बह होते हैं, इतना लंगर, इतनी रोटियां, इतनी गंदम पकती है, और इतने अरसे के बाद तो तेरा खजाना ही खत्म हो जाएगा। पर उस दिन के बाद उसने हाथ खींचा
और उसके दस्तरखान पे आदमी कम होते 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 होते, और जिस दिन फिरौन बर्बाद और तबाह हुआ है और फिरदौन गर्क हुआ है, उस दिन उसके दस्तरखान पे एक आदमी भी नहीं था। मखलूक को खिलाना, मखलूक को खिलाना, और मखलूक को खिलाने में दूसरी चीज, अल्लाह के हबीब की एक हदीस सुनाऊं आज आपको, आपने सुनी होगी, मैं हदीस को ज़ात दहानी के तौर पे ताजा कर रहा हूं। आका ने फरमाया, मफहूम है कि ये जो खाने वाली हड्डियां हैं ना, इनके ऊपर भी ग़िज़ा लगती है, और जो जिन्नात की ग़िज़ा होती है। क्यों जी, हदीस में है? हाँ जी। अच्छा, अब हमारे बड़ों की तरतीब देखें। हमारे एक बुजुर्ग थे मियाँ मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अकाबिर में से थे, कांदला के बुजुर्गों में से थे। उनकी तरतीब यह थी कि जब वो हड्डियां गोश्त की होती थी, तो हड्डियां गोश्त की वो किसी दरख्त के जड़ पे, साफ जगहों पे रख देते थे, और बाकायदा एहतमाम से रखवाते थे, बहुत एहतमाम से। मैंने एक दुर्वेश की 4 दिन खिदमत की, वो हड्डियां कभी भी नीचे नहीं फेंकते थे, डस्टबिन में, कूड़े में, कचरे में नहीं फेंकते थे। फरमाते थे, ये अल्लाह की अमानत हमारे पास है। लफ्ज सुनिएगा जरा गौर से, ये अल्लाह की अमानत हमारे पास है, अमानत हमारे पास है, और ये अमानत हमने पहुंचानी है। जिन्नात की ग़िज़ा अगर अमानत ना पहुंचाई, खयानत हो जाएगी, और खयानत से अल्लाह बरकतों के फैसले छीन लेता है। इस मुहर्रम के हमारे जो 1440 हिजरी, 1440 हिजरी शुरू हुई, इस मुहर्रम के इस मुकद्दस अय्याम में आज एक फैसला करें कि अपनी हड्डियां अपने घर की डस्टबिन में, कूड़े में नहीं फेंकने। ये हमारे अकाबिर बड़ों की मुझे मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग थे जो हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दाम में से थे, अब भी हैं। और एक मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग हैं गाजी मरजान, अब भी वो हजूर के रोज़े अतर के गुंबद खिजरा के सामने बस यूं टिकटिकी बांध के बैठे रहते हैं। मैं जब भी मस्जिद नबवी में जाता हूं, इस दफा मुझे नहीं मिले, ना मालूम शायद इस दुनिया में है, मैंने बहुत तलाश किया। उन्होंने सारी जिंदगी बुजुर्गों की खिदमत की, हजरत शेखुल हदीस की खिदमत की, और मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की। मैं उनसे बैठता हूं तो खामोश, किसी से बात नहीं करते। तो जब भी जाता हूं मैं कहता हूं, कोई एक अल्लाह वाले की एक बात सुना दे, बस मैं चुप करके चला जाऊंगा, आपको तंग नहीं करूंगा। पहले तो गुस्से में आते थे, फिर एक दफा मैंने अपना तारुफ कराया। मैं क्या, देखें मेरे साथ बहुत बड़ा मजमा है, आपकी बात इंशाल्लाह जाए नहीं जाएगी, आप अगर सुनाएंगे तो फिर मुझे एक बात सुना देते हैं। पिछले साल मैंने पूछा, मैं गया, रोजाना जाता था, मैं कि जी मेरा आज का सबक, तो मेरे वो एक बात सुना देते, मैं चुप करके उठा था। पिछले साल उन्होंने मुझे एक बात सुनाई, मुझसे कहने लगे, मैंने जितने भी सालेहीन की मदीना मुनव्वरा में जियारत की और उनकी खिदमत की, सुनिएगा, मैं बरकत का एक आपको तोहफा दे रहा हूं। और बरकत से मुराद रब की अता की हुई वो ताकतें, वो नेमतें, वो राहतें, वो रहमतें, वो कुदरतें हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं, और जिसकी मिसाल के लिए मैं अक्सर कुत्ते और बकरी की मिसाल देता हूं कि कुत्ता कितने बच्चे देता है, कुत्ती, और उसमें क्या बरकत होती है। क्या आज तक कोई माई का लाल मिला है आपको जो कहे मैंने कुत्तों के रेवड़ देखे हैं? और बकरी कितने बच्चे देती है और उसमें बरकत होती है। सारी दुनिया ने बकरियों के रेवड़ देखे हैं, कुत्तों के रेवड़ किसी नहीं देखे। कुत्ते में कसरत होती है, बरकत नहीं होती। बकरी में कसरत नहीं होती पर बरकत होती है। ये मिसाल समझ आई ना। अब मैं बरकत का जो तोहफा देने लगा हूं, गाजी मरजान साहब, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, पठान हैं और शायद कोई 45 साल से मदीना मुनव्वरा में मुकीम हैं।
हर वक्त आका के रोजा को बस ऐसे कोना है उनका मखसूस, वहीं बैठते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं। बहुत अजब उनके अंदर रूहानियत और नूरानियत है। तो मुझे एक बात बताइए, कहने लगे अब तक जितने अल्लाह वालों, सुलहा, बुजुर्गों की मैंने खिदमत की, औलिया की मैंने खिदमत की, उन सब में एक बुजुर्ग भी मैंने आज तक नहीं देखा जिसने हड्डियों को उठा के फेंक दिया हो। मान लेंगे मैंने शेख अल हदीस को एक दफा नाराज होते देखा, बहुत कम लोग चीजों पे नाराज होते थे, सख्त गुस्से में देखा कि एक बंदे ने हड्डियां और टिश्यू और चीजें उठा के इकट्ठी कर दी, कुछ फलों के छिलके थे सारी उठा के इकट्ठी कर दी। शेख अल हदीस जो है वो सारा कुछ देख रहे थे, ये सब कुछ देख रहे थे, शेख अल हदीस ये सब कुछ देख रहे थे। खिंच पड़ती है जरा इधर से ना, वो सब कुछ देख रहे थे। तो फरमाने लगे अपने खादिम को बुला के इस नाहंजार को, नाहंजार यानी बेअदब को तुमने दस्तर खान समेटना नहीं समझाया। उसे फौरन एहसास हुआ कि शेख की चाहत क्या है, चाहत क्या है। उसने कहा हजरत बस भूल हो गई, और मैं मेरे सामने इसे समझाओ। मेरे सामने इसे समझाओ, मेरे सामने। उसने फौरन वो पलट दी सारी तश्तरी जिसमें टिश्यू, फलों के छिलके, रोटी के टुकड़े, हड्डियां, हड्डियों को जुदा किया, रोटी के टुकड़े जुदा किए और छिलके टिश्यू वगैरह जुदा किए। और फिर फरमाया कि शेख ने कि इन हड्डियों को जाके ऐसी जगह रखो जहां साफ जगह हो, गंदी और नापाक जगह ना हो। ये किसी का रिस्क है जो हमारे पास अमानत है। और फिर उन्होंने एक मुझे वाकया सुनाया बड़ा अजीब व गरीब। फरमाया एक दफा मैं हजरत शेख उल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा हुआ था। एक शख्स आया, मोटी मोटी भवें, बड़ी पगड़ी पहनी हुई, बड़ा मोटे मोटे हाथ, ऐसे जिस्म जुस्सा, हैबत नौक। कहने लगे बहुत से लोग देख के एक तरफ सिमट के बैठ गए। उसने शेख उल हदीस को जो है मुसाफा किया, अदब से बैठा और बातें करने लगा। और शेख उससे बातें करते 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 और अपने खादिम को बुलवा के कहने लगे इससे मुसाफा करो। तो खादिम ने, शेख के खादिम ने मुसाफा किया और मुसाफा करके फरमाने लगे ये अल्लाह की मखलूक है और जो तुम हड्डियां देते हो ना ये तुमसे बड़ा खुश है और तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया है, अब सुनो इससे। तो वो कहने लगा जी मैंने बड़े बड़े मुहद्दिसीन की खिदमत की है, मैं आलिम भी हूँ, हाफिज भी हूँ, जिन हूँ, और इतनी सदियां मेरी उम्र है। मैं जो आपकी खिदमत करते हैं ना, आप हमारी हड्डियों की पाकीज़ा जगह रखते हैं और अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा इस पे मुकर्रर की हुई है जो तुम्हें नज़र नहीं आती। इसके सिले में मैं उन लोगों के लिए बहुत दुआएं मांगता हूँ, बहुत अमल करता हूँ, और आज तक मैंने जिसके लिए दुआ मांगी है अल्लाह ने उसे नेमतें, दौलतें, बेटे, इज्जतें, माल, घर और शान शौकत अता फरमाई है। जो हमें ये ग़िज़ा देगा अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं रखेगा, अल्लाह हमेशा उसको मालदार रखेगा और हमेशा उसको नेमतें और तोहफे अता फरमाएगा। हमारे पास तो जिन्नात की ग़िज़ा अमानत है, मखलूक की ग़िज़ा अमानतें हैं। वो समंदर की मखलूक है, वो कब्रिस्तान की मखलूक है, हमारे जिम्मे है। हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि छोटे छोटे टुकड़े वो उठा लेते थे, फरमाते थे ये चूंटियों के बिलों में डालो, इनकी ग़िज़ा भी हमारे जिम्मे है। और बाज़ औक़ात रोटी के टुकड़े उठा लेते थे, फरमाते थे फलां वो एक नवाब थे, उनका तालाब था, उसमें डाल के आओ रोटी के टुकड़े, ये मछलियों की ग़िज़ा, ये भी हमारे जिम्मे है, ये दुआएं करती हैं, बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं। और रिवायात में लिखा है मछली, हर मखलूक का एक जिक्र है, सुन लीजिए। हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मेंढक भी एक जिक्र करता है, बुलबुल भी, कौवा भी, और हर जानवर अल्लाह का जिक्र करता है। उसकी आवाज में हमें जिक्र समझ नहीं आता पर जिक्र करता है। फरमाया मछली वाहिद है जिसका जिक्र दरूद पाक है।
और शहद की मक्खी का जिक्र दरूद पाक है। यहां तक फरमाया कि कोई शहद की मक्खी फलों का रस चूस के ले आती है, वो तो कड़वा होता है, अगर दरूद पाक पढ़े तो अल्लाह उसमें मिठास डाल देते हैं। और मछली जब तक दरूद पाक पढ़ती है, समंदर की गहराइयों में अल्लाह उसके लिए जगह रखता है। वो एक दरवेश थे ना, वो शिकार करते रहे और 7 बच्ची बैठी थी। शाम को देखा तो एक मछली भी नहीं, तो देखा कहां गई मछलियां। उसने कहा अब्बा जी, आपसे तो सुना था जब कोई मछली अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है शिकार हो जाती है। फिर मेरे जी में आया ये बगैर जिक्र की हुई मछली हम खाएंगे, कहीं हमारा दिल जिक्र से गाफिल ना हो जाए, इसलिए आप जो मछली शिकार करते थे मैं उठा के वापस समंदर में डाल देती थी। अब्बा जी शिकार करते थे और बेटी उठा के इस जज्बे से समंदर में डाल देती थी कि आपसे सुना है कि जो दरख्त जिक्र करना छोड़ देता है वो काट लिया जाता है, और जो मछली जिक्र करना छोड़ देती है वो शिकार हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि गाफिल मछली को खा के हम अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाएं। तो इसलिए मैंने फिर मछली समंदर में वापस डाल दी। एक जज्बा है, एक जज्बा है। तो जो अमल मैं आज अब बताने लगा हूं वो ये है जो मैंने कई दफा बताया, अपने वजन के बकदर चावल ले लें। कच्चे चावल हों, सस्ते चावल हों, कच्चे चावल हों, सस्ते चावल हों। सस्ते से मुराद बात आला क्वालिटी के होते हैं, बात टुकड़ा टोटा होते हैं, सस्ते होते हैं। अपने वजन के बकदर चावल ले लें। अब वजन अगर थोड़ा हो तो सस्ता काम हो जाएगा, और वजन ज्यादा हो तो मैं रात एक जगह खाना खा रहा था, मैंने एक साहब को देखा, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ पेट उनका था और सबसे ज्यादा बदपरहेजी वो कर रहे थे और मेरी हाय हाय निकल रही।